getting any kind of error. Your printer is also printing the papers. So these two are being parallelly. Okay, this is task 1 and this is task 2, and in the system we have processor. So what processor is doing is, in the computer, whatever control, whatever the program that is running, it is controlled by the processor. That songs is uh, uh, playing, songs are playing, documents are getting printed. So these process are being controlled by the processor. It means that processor is giving chance to each task either parallelly or one by one. So at first we will think about a system where there is a single processor. Single processor means one processor is there, and this processor is the only one who is going to control the flow of this program. It means the processor is going to command that, okay, task 1 you may run. After some time, task 1 you stop, task 2 you may run. Okay. So if such events are being occurred in a program, it is called multi-threading or multitasking. Basically, this is a concept of multitasking, that multiple tasks are being done at the same time. Okay, several program, or in terms of system or programming language, what we say, that several programs are running. In the backend, someone has written a program that will play the song, and there is some driver or hardware which is a program which is itself a program which is using which is printing the document. So several programs are running. If we talk in computer language or in system terminology, several programs are running at the same time. So this is called multitasking. Or we can also say that if this is a thread 1 and this is a thread 2, so multiple threads are running at the same time, and it is called multi-threading. So at last, what is the conclusion? Conclusion is, if several threads are running simultaneously, sorry, T1 to Tn, if several threads are running simultaneously or parallelly, it is called multi-threading. यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है, ईच पार्ट एक थ्रेड की तरह काम कर रहा है, और मल्टीपल थ्रेड सेम टाइम पे अगर रन कर रहे हैं, तो उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज T1 है, इसको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है नंबर, ठीक है, और एक सपोज मेरा थ्रेड है T2, इसको क्या करना है, इसको 2 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों थ्रेड की तरह काम कर रहे हैं और इसको अगर मेरा प्रोसेसर 1 बाय 1 इसको बुला रहा है कि आप कॉल कीजिए, उसके बाद आप रन कीजिए, मीन्स ज़रूरी नहीं है। देखिए, थ्रेडिंग में जो आउटपुट है वो कभी फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स्ड का मतलब ये डिपेंड करता है थ्रेड के ऊपर कि वो इसे कितना टाइम दे रहा। सपोज अगर इसको T1 को जो है दिया गया टाइम, सपोज 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम दिया गया, इस टाइम में इसने प्रिंट किया 1 2 3, आपके कंसोल पे दिख रहा है 1 2 3, और उसके बाद इमीडिएटली इसने इससे एक्सेस ले लिया और T2 को दे दिया, सॉरी T1 जो है, T1 को पहले चांस दिया, T1 ने जो है 1 टू इसको 2 सेकंड का सपोज टाइम दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 2 सेकंड, 2 सेकंड बहुत होते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि अगर इसने 2 सेकंड का टाइम दिया हो इसको, तो इस 2 सेकंड में इसने 1 2 3 प्रिंट किया, और इसी बीच इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट का मतलब स्विच कर दिया इसको और दूसरे थ्रेड को दे दिया T2 को। अब T2 को उसने 1 सेकंड ही दिए, तो जो, और ये जरूरी नहीं कि ये टाइम भी सबको इक्वल देगा, ठीक है, या 1 सेकंड दिया, 2 सेकंड दिया, 3 सेकंड दिया कुछ टाइम,
क्योंकि प्रायोरिटी सपोज किसी की अलग अलग है, प्रायोरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब इसने क्या प्रिंट किया, 2 का टेबल, 2 4 6 8, अभी इसने इतना ही प्रिंट किया था कि प्रोसेसर ने कंट्रोल इससे वापस दे दिया T1 को। T1 कहाँ पे स्टॉप हुआ था, 3 पे। तो अब T1 क्या प्रिंट करेगा, सपोज 3 के बाद 4 5 6। तो इस तरह से स्विचिंग चालू है। इसका मतलब क्या है, मेरा हर थ्रेड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रहा है, अपने प्रोग्राम के एंड तक नहीं पहुंच रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो दोनों को दिया जा रहा है। तो जब इस तरह का प्रोसेसिंग हो तो इसे कहा जाता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इट मीन्स थोड़ा इसको देखते हैं। एक जो है एक होगा, और यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हो रहा है, एक मेरा जो है कोई मेन थ्रेड है, एक मेरा कोई मेन थ्रेड है। ठीक है, एक मेरा मेन थ्रेड है। अब इसने क्या किया, सपोज एक मेरा थ्रेड ए चल रहा है, एक थ्रेड बी चल रहा है, और एक थ्रेड सी चल रहा है। थ्रेड सी चलना है। ठीक है, अब ये मेन थ्रेड के, ये जो बाकी थ्रेड्स हैं ये सब इस मेन थ्रेड से होकर चले हैं। तो मेन थ्रेड पहले इसको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फिर इसको स्टार्ट कर रहा है, फिर इसको स्टार्ट कर रहा है। तीनों थ्रेड सपोज स्टार्ट हो गए। अब बीच बीच में क्या हो रहा है कि इनकी स्विचिंग हो रही है। जैसे थ्रेड ए ने रन करना शुरू किया, उसके बाद इमीडिएटली थ्रेड बी को दे दिया गया। ठीक है, थ्रेड बी ने कुछ देर रन किया, थ्रेड सी को दे दिया गया, स्विच कर दिया गया। फिर थ्रेड सी ने थ्रेड बी को कंट्रोल भेजा, और थ्रेड बी से कंट्रोल फिर थ्रेड ए पे चला गया। तो इस तरह से जो है एक मेन थ्रेड होगा, उसके पैरेलल में उसके चाइल्ड थ्रेड होंगे, और वो थ्रेड आपस में स्विचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हर एक थ्रेड को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का। जो भी इसको टास्क दिया गया हो सकता है इसको डिफरेंट टास्क दिया गया हो, इसको कुछ और दिया गया हो, और इसको कुछ और दिया गया हो। हर थ्रेड जो है, जो इसे इंडिविजुअल टास्क दिया गया है, उस इंडिविजुअल टास्क को अपने दिए हुए टाइम में ये क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है। और एक जो है वो जरूरी नहीं कि अपना पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद दूसरे को दे सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन प्रोसेसर, कि प्रोसेसर उसको कैसे मैनेज कर रहा है इंटरनली। ठीक है, कि वो स्विचिंग कैसे मैनेज करा रहा है। तो बेसिकली कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि अगर मेरा मल्टीपल थ्रेड, मल्टीपल टास्क आपका इन पैरेलल रन कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज कहलाती है आपकी मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, अभी मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया। एक इतने पूरे रामायण में आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मेरे पास मल्टीपल थ्रेड हैं और पैरेलली रन कर रहे हैं। इस तरह के कंसेप्ट को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। अभी कोडिंग में नहीं जाना है, अभी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसमें नहीं जाना है। अभी बस ये समझिए कि मल्टी थ्रेडिंग है क्या। ठीक है, तो ये था। सर हाँ, यस, बताइए मंतशा बताइए। सर मतलब सारा थ्रेड एक साथ चल रहा है तो हाउ दे कैन मैनेज द टाइम टाइम ये टाइम जो है वो प्रोसेसर मैनेज कर रहा है इनका। हाँ। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर के पास जो है थ्रेड 1 पहले रजिस्टर हुआ, थ्रेड 2 रजिस्टर हुआ, थ्रेड 3 रजिस्टर हुआ। इसके पास हो सकता है और भी काम होंगे। जब आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ा होगा थ्योरी, तो उसमें स्विचिंग का कंसेप्ट आया होगा कि प्रोसेसर जो है Yes. हाँ, कि प्रोसेसर जो है वो हर एक को कुछ टाइम फ्रेम देता है। ठीक है, हर एक को कुछ टाइम फ्रेम दिया अपने हिसाब से। सपोज इसका टाइम का पैकेट जो है वो 2 सेकंड का है, इसको भी 2 सेकंड का दे रखा है, इसको भी 2 सेकंड का दे रखा है, इसको भी 2 सेकंड का दे रखा है। इसके पास काउंटर टाइमर है इसके पास, कि 2 सेकंड का बेसिकली इसका काम ही है इसका फ्लो का एग्जीक्यूशन कर। ठीक है, ये कंट्रोल करता है कि मेरा T1 जो है 2 सेकंड चल गया, जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, अब कंट्रोल इससे ले लेगा, और कंट्रोल यानी कि अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा जहां पर ये स्टॉप हुआ था उसके बाद से। जब इस ये 2 सेकंड में जितना काम इसको करना होगा ये कर रहेगा, उसके बाद ये कंट्रोल इसको मूव कर देगा। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि ये T3 को ही करे। अगर प्रायोरिटी मान लो इसको इसकी हाई है, तो ये इसको भी प्रायोरिटी पे अभी नहीं आते हैं। अभी आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हर एक को इसने अगर दो दो दे रखा है सेकंड का टाइम, तो 2 सेकंड इसको एग्जीक्यूट करेगा, 2 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको करेगा, नेक्स्ट इसको करेगा। ठीक है,
और अगर जावा के टर्मिनोलॉजी में समझें तो बेसिकली क्या होता है कि अगर जावा में मेरे पास सपोज मल्टीपल थ्रेड हैं, तो जो जावा का इंटरप्रेटर है, जावा का जो इंटरप्रेटर है, अगर जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझें तो जावा का एक इंटरप्रेटर है। ठीक है, अब जावा का इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इसको पता है कि मेरा जो प्रोग्राम रन कर रहा है, सपोज मेरा उसमें एक थ्रेड है T1, एक थ्रेड है T2, एक थ्रेड है T3 और एक थ्रेड है T4, इस तरह से इसके पास है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये प्रोसेसर को, ये प्रोसेसर है सिंगल प्रोसेसर। ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें सिंगल प्रोसेसर है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। तो जावा इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये पहले T1 का कंट्रोल इसको देगा। ठीक है, प्रोसेसर क्या करेगा कि T1 में जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको वन बाई वन एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। जब उस वन बाई वन, और यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है कि T1 का कुछ टाइम है, T1 जैसे ही हो गया, ठीक है, ये वापस इसके पास आ जाएगा और कहेगा कि एक थ्रेड का टाइम कंप्लीट हो गया, आप दूसरे को भेजो। तो T2, अब ये जावा इंटरप्रेटर क्या करेगा, T2 का कंट्रोल इसको देगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सारे थ्रेड जो है बेसिकली उनके बीच शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसको लेहमन लैंग्वेज में अगर समझें तो सपोज एक फैमिली है। ठीक है, लेहमन लैंग्वेज में अगर, इन जावा हम लोग थ्रेड कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो है कि मेरा थ्रेड क्लास को मैं एक्सटेंड करूं, एक क्या है कि मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करूं, एक तरीका तो ये है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि कितने तरीके हैं थ्रेड क्रिएट करने के। तो एक तरीका तो है कि मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करूं अपने एग्जिस्टिंग क्लास से, और उससे मैं मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाऊं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, बाई इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, बाई इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, यानी वन वे इज बाई यूजिंग क्लास एंड अनदर इज बाई यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, दो तरीके हैं हम लोगों के पास। ठीक है, बट बिफोर डाइविंग डीपर इनटू थ्रेड, हम लोग को एक और चीज़ जानना चाहिए, वो ये है कि मेरा अगर कोई थ्रेड है, मेरा अगर कोई थ्रेड है, तो ये आप कह रहे होंगे, आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि थ्रेड मेरा रन कर रहा है, फिर स्टॉप कर रहा है, फिर रन कर रहा है, फिर स्टॉप कर रहा है, तो क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्ड वर्ड यूज हुआ है, क्या कोई स्टैंडर्ड स्टेट हम लोगों ने, जावा ने प्रोवाइड कर रखा है कि हाँ अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ये मेरा स्टैंडर्ड, ये मेरा स्टेट है, तो हर जगह समझ में आ जाए, हर किसी को समझ में आ जाए। तो हाँ, इसके लिए जो है वो थ्रेड के लिए मल्टीपल स्टेट बताए गए हैं, अलग अलग स्थिति में ये थ्रेड हो सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेट क्या हो सकता है, न्यू बॉर्न, मतलब अभी अभी थ्रेड जो है वो जस्ट बना है। न्यू बॉर्न होने के बाद दो है, एक तो ये कि ये रनेबल मोड में आ गया, रन नहीं कर रहा है, रनेबल मोड में आ गया है, यानी रन करने के लिए रेडी है। दूसरा क्या है, रनिंग, मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है, ब्लॉक्ड, मेरा ब्लॉक्ड स्टेट में हो सकता है। और लास्ट हो गया डेड, खत्म। ठीक है, इसके बाद ये वापस कभी भी इन स्टेट्स में नहीं लौट सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक तो मेरा थ्रेड है, ये कौन कौन से स्टेट मेंटेन कर रहा है, तो 5 स्टेट मेंटेन कर रहा है। ठीक है, पहला हो गया न्यूबॉर्न, यानी नया थ्रेड बना। दूसरा हो गया मेरा रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड एंड डेड स्टेट। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि अगर मेरा कोई थ्रेड जो है वो न्यू बॉर्न थ्रेड है, ठीक है, अगर मेरा कोई थ्रेड जो है वो न्यू बॉर्न थ्रेड है, ठीक है, तो न्यू होने के बाद ये कौन से स्टेट में जा सकता है, एक तो है कि ये रनेबल मोड में जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि ये रनिंग मोड में जा सकता है, यानी कि ये थ्रेड मेरा बना, उसके बाद ये रनेबल भी हो सकता है और रनिंग भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से
किसी एक स्टेट में ये जा सकता है। और ये दोनों भी अपने आप में स्विच कर सकते हैं। अगर ये रनेबल में है तो रनिंग में जाएगा, रनिंग में है तो रनेबल स्टेट में जा सकता है। ठीक है, इसको आप वन पार्ट समझिए। ये दोनों स्टेट जो है आपस में ये दोनों स्टेट जो है वो आपस में चलते रहेंगे। यानी न्यूबॉर्न जो है मेरा थ्रेड वो रनेबल मोड में आ सकता है या रनिंग मोड में आ सकता है। उसी तरह से अगर कोई थ्रेड रनेबल स्टेट में वेट कर रहा है अपने रनिंग का, तो वो रनिंग स्टेट में भी जा सकता है। और रनिंग अगर कोई है तो वो स्टॉप होकर रनेबल में जा सकता है कि वो दोबारा फिर से रनिंग कर सके। ठीक है, इसी तरह से एक स्टेट है ब्लॉक। इन दोनों स्टेट से ये ब्लॉक स्टेट में भी जा सकता है और ब्लॉक से वापस रनिंग में भी जा सकता है। और एट लास्ट एक जो लास्ट स्टेट है इसका वो है डेड। यानी मेरा थ्रेड का काम कंप्लीट हो गया, डेड हो गया, अब ये आगे कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डेड होने के बाद रिवर्स गियर नहीं है, ये केवल वन वे है। यानी न्यूबॉर्न है वो बिना कोई काम किए भी डेड स्टेट में जा सकता है। अगर कोई रनेबल या रनिंग है तो अपना प्रोसेस सारा कंप्लीट करने के बाद भी जा सकता है डेड स्टेट में। और अगर कोई ब्लॉक थ्रेड है तो ड्यू टू सम रीजन, चाहे एक्सटर्नली किया जाए या जैसे भी, ये डेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन यहाँ से वापस ये कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मेरा थ्रेड डेड है तो वो वापस न्यू स्टेट में आ जाए, या ऐसा नहीं होगा कि मेरा अगर कोई थ्रेड डेड हो चुका है तो मैं वापस उसको स्टार्ट करके रनिंग मोड में डाल दूँ, ये नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो अभी इस पेज में जो आपको मैंने समझाया, ठीक है, पहले पेज में ये समझाया था कि मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क कैसे हैंडल हो रहे हैं, मल्टीपल टास्क रन कर रहे हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल देने की कोशिश की। आई डोंट नो कि कितना समझ में आया आपको। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया इट्स ओके, हम लोग आगे और देखेंगे आउटपुट में। ठीक है, यहाँ मैंने ये समझाया कि मेन थ्रेड जो है उससे निकल के ही इसके चाइल्ड थ्रेड जाते हैं और ये आपस में स्विचिंग करते रहते हैं, कि ये आपस में शेयर करते हैं कि थ्रेड चलो 2 लाइन तुम्हारा हो गया, अब इसको मौका दो। थ्रेड बी, अब थ्रेड बी के पास मौका आया, चांस आया, अब इसने रन किया अपना प्रोग्राम। उसके बाद थ्रेड सी में आया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रोसेसर के पास जावा के कोड, जावा के जो थ्रेड हैं उनके कंट्रोलिंग के लिए प्रोसेसर और थ्रेड्स के बीच में कौन वर्क करता है, तो जावा इंटरप्रेटर। ठीक है, देन वी केम कि हम लोग जावा के टर्मिनोलॉजी में समझें तो थ्रेड हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो कि थ्रेड क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और दूसरा है एक रनेबल इंटरफेस है उसका इम्प्लीमेंटेशन उसको इम्प्लीमेंट करके थ्रेड क्लास बना सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग में हम लोग थ्रेड में जाने के पहले एक ये तरीका है कि हम लोग जो है इसके स्टेट्स को समझ लें कि किस किस स्टेट में ये काम करता है। तो बेसिकली 5 स्टेट्स होते हैं। या तो मेरा थ्रेड जो तुरंत बना वो या तो रनेबल, रनेबल मोड का मतलब रनिंग नहीं है, माइनर डिफरेंस समझिए इन दोनों के बीच में, रनेबल और रनिंग के बीच में समझिए। रनेबल मीन्स रेडी टू रन बट नॉट रनिंग। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है वन बाई वन, ये सिर्फ इस मोड में आ गया है, यानी नेक्स्ट टू रन। ठीक है, ये समझिए, ये दोनों सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ से फिर ये आइडल स्टेट में भी जा सकता है, किसी और थ्रेड को चांस मिला तो ये वाला जो है वो आइडल स्टेट में चला गया। उसके बाद जो है जब इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो ये डेड स्टेट में चला गया। तो बेसिकली ये 5 स्टेट्स आपको याद रखने हैं इसके। ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा एक प्रोग्राम हम लोग बनाकर देखते हैं। उसके बाद अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ये होते हैं कि अगर मेरा कोई थ्रेड जो है वो ब्लॉक्ड है तो इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये नॉट रनेबल है, ये वापस रनेबल मोड में आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई थ्रेड डेड स्टेट में पहुंच गया है तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। अगर आप किसी डेड थ्रेड को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन करके। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेप्शन के बारे में भी आगे देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल एक काम करते हैं, एक थ्रेड का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इतने तक में आपको जो भी कन्फ्यूजन है पहले वो डिस्कस कर लीजिए, फिर हम लोग प्रोग्राम में चलेंगे।